this is Tarun Kumar Das working in Kendriya Vidyalaya Koraput. Welcomes all of you for today's mathematics class, and today's topic is divisibility rules. This topic is quite related to the chapter factors and multiplications. So I'd like to request everyone, please watch this video up to the end. You will get some of the questions to solve. And in this topic, I am going to discuss about the divisibility rules associated with the numbers 2, 3, 4, 5 and 6. This is the part 1 of this divisibility rules video lesson. And in the next part, I will discuss about the divisibility rules of the other numbers like 7, 8, 9, 10, 11. So I hope you will be stay tuned for attending the next class. Now let's start the divisibility rules part 1. Before going to the lesson, let's find out what are the objectives we are going to achieve after this end of the lesson. And the objectives are: understand the term divisibility, understand the rules of divisibility, and number 3, apply the divisibility rules for various purposes. इसका मतलब ये होता है कि हमें divisibility के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल पाएगी और ये divisibility rules क्या है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और इस divisibility rules को हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज पढ़ते हैं divisibility rules. So my dear friends, let's learn divisibility. This is Rahul and this is Rahul's teacher. And Rahul's teacher asked a question to Rahul. ये राहुल है और ये राहुल के टीचर है। तो टीचर राहुल को सवाल करते हैं कि What do you mean by the term 16 is divisible by 2? 16 is divisible by 2 इसका मतलब क्या होता है? तो राहुल का आंसर होता है कि it means when we divide 16 by 2 then we get the remainder 0. राहुल का जवाब होता है जब हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। 16 divided by 2 which is equal to 8. Here 8 is the quotient. यहाँ पे 8 quotient है, 16 जो है डिविडेंड है और 2 जो है डिवाइजर है। तो 16 को हमने 2 से डिवाइड किया और हमें मिला 8 और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर यहाँ पे 0। इसका ये मतलब हुआ कि 16 is divisible by 2 completely. What is divisibility? राहुल का जवाब: A number is said to be divisible by another number if the remainder is 0. एक नंबर को हम एक नंबर से डिविजिबल तब कहेंगे जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये होता है डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल 36 एक नंबर है, 36 डिवाइडेड बाय 4 which is equal to 9, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। तो 36 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमें मिलेगा 9 और रिमाइंडर मिलेगा 0। तो हम कहेंगे यहाँ पे इसी टर्म को कहेंगे डिविजिबिलिटी। तो 36 जो है 4 से डिविजिबल है अच्छी तरह से, मतलब कंप्लीटली। Rahul, can you tell me whether a number is divisible by another number without dividing? राहुल की टीचर ने पूछा कि राहुल क्या आप बता सकते हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर से हम डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं, वो भी कुछ नए तरीके से, मतलब जैसे जनरल डिवीजन होता है उसी तरह ना करके हम कैसे बता पाएंगे? Rahul's answer: Yes, it is very easy to find out whether a number is divisible by another number with the help of divisibility rules. राहुल ने कहा ये तो बहुत ही आसान है कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करेंगे तो अच्छी तरह से आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि 436 is divided by 2. 436 is also divided by 3 completely. 436 is also divided by 4
कंप्लीटली। इसका मतलब 436 जो है वो 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। वो भी यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए, बिना डिवीजन किए राहुल यहाँ पे बता सकते हैं कि 436, 2, 3, 4 ये तीनों नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। वो कैसे? अब राहुल एक्सप्लेन करना चाहते हैं। What do you mean by divisibility rule? Explain it. आपको डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या समझ में आता है? थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए। A divisibility rule is the shortest way of finding whether a given number is divisible by another number without performing the division, usually by examining its digits only. राहुल ने कहा कि डिविजिबिलिटी रूल वही होता है, ये एक शॉर्टेस्ट वे होता है, एक शॉर्टेस्ट मेथड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं हम आसानी से पता लगा सकते हैं, वो भी पहले नंबर के डिजिट्स को देखकर ही पता लगा सकते हैं। कैसे? इट इज क्विक वे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर्स। अगर कोई बड़े बड़े नंबर हो और उस बड़े बड़े नंबर का अगर जब हमें फैक्टर पूछा जाता है, वो भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके हम उसके आसानी से फैक्टर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। Divisibility by 2. If the units place of a number is 0, 2, 4, 6 or 8, then the number is divisible by 2. Divisibility by 2 का फॉर्मूला है, अगर एक नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होता है या फिर उसके यूनिट्स प्लस मतलब पहला डिजिट जो है राइट हैंड साइड से अगर वो 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो वो नंबर 2 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल 258, यहाँ पे देख सकते हैं द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर 258 इज 8। 258 का यूनिट्स प्लेस मतलब लास्ट नंबर राइट हैंड साइड से पहला नंबर 8 है और 8 होने के कारण दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेट्स चेक। अब चेक कर लेते हैं कि ये रूल एप्लीकेबल जो किए हैं हमने क्या सही है या गलत है। 258 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s 2, उसके बाद 2 से 2 माइनस किया हमें मिला 0, फिर हमने लाया 5 को, तो 5 को लाने के बाद हम फिर से डिवाइड करेंगे 5 को, 2 2s 4, सो हमें रिमाइंडर मिलेगा कितना 1, 1 मिलने के बाद हम फिर से लेकर आएंगे 8 को, तो अभी बनेगा 18 बन गया। अभी 2 9s 18, इसका मतलब माइनस करेंगे तो मिलेगा कितना 0, इसका मतलब हमें रिमाइंडर यहाँ पे मिला 0 मिला और कंप्लीटली डिविजिबल हो पाया किससे 2 से, तो ये रूल एप्लीकेबल करता है। डिविजिबिलिटी बाय 3. If the sum of all the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. अगर एक नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे और उसका टोटल जो आएगा वही नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो पा रहा है तो मान लो वो जो पहला नंबर दिया गया था वो भी 3 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो पाएगा, वो भी रिमाइंडर 0 के साथ। कैसे? चलते हैं एक एग्जांपल लेकर। एक एग्जांपल में यह है 357। 357 का जो सम ऑफ द डिजिट्स है 3, 5 एंड 7, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिला कि कितना 15 मिलेगा और 15 जो है इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। अगर 15 3 से डिविजिबल हो पाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 357 भी 3 से अच्छी तरह से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिविजिबल हो सकता है। तो इसके लिए चेक कर सकते हैं। चेकिंग करते वक्त देखते हैं 357 divided by your number 3 and you will get 3 1s 3, then take 5, 3 1s 3, then minus you will get 2, then take 7 and 3 9s 27, so again minus, then you will get 0, so it is completely divisible by 3. Then divisibility by 4. If the number formed by taking the last 2 digits of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई एक नंबर लेते हैं और उस नंबर के लास्ट
दो डिजिट जो होते हैं, टेंस प्लेस और वंस प्लेस को मिला के जो दो डिजिट, उसी दो डिजिट में जो नंबर बनेगा उसी को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे और वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो पा रहा है, तो हमारा बड़ा नंबर जो लिए थे पहले, वही नंबर भी 4 से डिविजिबल हो पाएगा। देखते हैं कि एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल 936, the number by taking the last two digits is 36। 936 में लास्ट टू डिजिट है 3 एंड 6, तो 3 एंड 6 को लेकर नंबर बना कितना 36, और 36 जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 4 9 जा 36, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है, तो इसका ये मतलब हो गया 936 भी 4 से डिविजिबल हो पाएगा। चेक कर लेते हैं, तो 936 divided by 4, 4 2 ja 8, then take 1, then bring 3, 4 3 ja 12, then take 1, okay, then bring 6, then 4 4 ja 16, so you will get the remainder 16 minus 16 equal to 0। तो ये पता चला कि 936 भी 4 से अच्छी तरह से डिविजिबल हो पाया है। तो this rule is applicable for divisibility 4. Divisibility by 5. If the last digit of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. अगर लास्ट नंबर, एक नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर 5 होता है, तो मान लो वो नंबर भी 5 से अच्छी तरह से आसानी से डिविजिबल हो पा रहा है। कैसे? एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 850, 850 में आप लोग देख सकते हैं द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 850 इज 0। यहाँ पर लास्ट नंबर डिजिट जो है वो है 0, और वो जो रूल के हिसाब से ये 0 होने के कारण दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। चेक कर लेते हैं, 850 divided by 5, which you will get 5 1 ja 5, then subtraction we will get 3, and then bring 5, 5 7 ja 35, next subtraction 0, and you have to bring back 0 from top, then 5 0 0, so you will get the remainder once again 0. That means 850 divided by 5, which is equal to 170. तो 850 को हम 5 से completely divide कर दिए। Another example here 685. As per the rule, the last digit of the number 685 is 5. So this will be divisible by 5. Let's take by normal dividing. 685 divided by 5, which is equal to 5 1 ja 5, then take 1, as then bring 8, then 5 3 ja 15, then you will get after subtraction 3, then bring 5, then 5 7 ja 35, and after subtraction you will get 0. So here also we got 685 is completely divisible by 5. Divisibility by 6. If a number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6. दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो है 2 और एक 3 है। अगर ये नंबर, कोई भी एक नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइडेबल हो सकता है, तभी जाके वो 6 से डिविजिबल हो पाएगा। मान लो कोई एक नंबर है वो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा, वो 6 से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नंबर 2 से नहीं हो पा रहा है पर 3 से डिविजिबल हो पा रहा है, तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो पा रहा है, उसके साथ साथ 3 से भी डिविजिबल हो पा रहा है, तभी जाके वो नंबर 6 से डिविजिबल हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल 642, आसानी से आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट जो है वो है 2, तो 2 लास्ट डिजिट होने के कारण एज पर द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, दिस 642 इज डिविजिबल बाय 2। अभी हम अप्लाई करते हैं वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स का टोटल ले लेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स इज 6 + 4 + 2 which is equal to 12।
So 12 is divisible by 3. अगर 12 डिविजिबल बाय 3 है तो ऑटोमेटिकली 642 भी 3 से डिविजिबल हो पाएगा। तो अभी उसके बाद आती है hence 642 is divisible by 6, क्योंकि 642 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए 642 6 से भी डिविजिबल होगा। लेट्स चेक। 642 divided by 6, 6 1s are 6, then after subtraction you will get 0, then bring back 4, then you have to divide 4 by 6, but you cannot divide, that is why you have to put 0, 6 0 0, then after subtraction you will get 4, then bring back 2, then the number becomes 42। अभी क्या करेंगे, 6 7 जा 42 है, तो हम 42 माइनस 42 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेदर 150 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6। आपको क्या करना है, 150 के साथ चेक करना है क्या ये 2, 3, 4, 5, 6 से डिविजिबल है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको नॉर्मल डिवाइडिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके इसको फाइंड आउट करना है। तो द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 150 इज 0। 150 का लास्ट डिजिट जो है 0 होने के कारण ये 2 से आसानी से डिविजिबल हो पाएगा। सो 150 इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल हो पाएगा। जी हाँ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 150 इज 1 प्लस 5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 6, और 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 6 is divisible by 3, so the number 150 is divisible by 3। अभी चेक करते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 150 इज, लास्ट 2 डिजिट्स जो है 5 और 0, इन दोनों को लेकर आपका नंबर फॉर्मेशन हुआ 50। अब 50 को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 4 से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 10 जा 40 है, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48 है, उसके बाद 13 4 जा 52 हो जाता है, और 4 टेबल पर 50 नहीं है। तो इसका मतलब 50 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दोस्तों 150 को भी आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 150 ही नहीं, आप ले लीजिए 2150 ले लीजिए, या फिर 23,150 ले लीजिए, तब भी आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट्स जो है 50 वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 150 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अभी चेक करते हैं क्या ये 6 से डिविजिबल है, सॉरी 5 से डिविजिबल है। तो उसके लिए हमें चेक करना है इसका लास्ट डिजिट क्या है। इसका लास्ट डिजिट है 0, और 150 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि एज पर 5 का रूल जो है, लास्ट डिजिट अगर 0 रहता है तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। तो ऑलरेडी 150 के पास 0 है लास्ट डिजिट में, और 150 इज डिविजिबल बाय 5। अभी चेक करते हैं क्या ये 150 6 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 150 इज 0, it doesn't matter, but that is why the number 150 is divisible by 2। इसका लास्ट डिजिट 0 होने के कारण ये 2 से डिविजिबल है, और इसका सम जब लेंगे हम, टोटल जब करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 6, और 6 जो है 3 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे 150 भी 3 से डिविजिबल है। अभी आपको पता लग गया दोस्तों, ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका ये मतलब हुआ दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। दैट मींस 150 is divisible by 2 and 3 both. That is why 150 is also divisible by 6. अभी हमें पता लगा 150 is divisible by 2, 150 is divisible by 3, 150 is divisible by 5, 150 is divisible by 6, but 150 is not divisible by 4। 150 जो है 2 से डिविजिबल हो पा रहा है एज पर रूल, 3 से भी हो पा रहा है, 5 से भी हो पा रहा है, 6 से भी हो पा रहा है, पर 4 से 150 डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। Which among the numbers
1523, that means 1523, 365, 4750, 991 are divisible by 5. चेक विद डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको पता लगाना है ये जो चार नंबर ऊपर दिए गए हैं, क्या ये चारों नंबर, इसमें से कौन से नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल हो पा रहे हैं, वो भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके आपको कैलकुलेशन करना है, आपको नॉर्मल डिवाइडिंग नहीं करना है। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं 1523 को लेकर। 15 द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 1523, दैट मींस 1523 इज 3। इसका लास्ट डिजिट जो है 3 होने के कारण ये 5 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए। सो 1523 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अभी चेक करते हैं 365। द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 365 इज 5। सो 365 इज डिविजिबल बाय 5। 365 का लास्ट डिजिट 5 होने के कारण 365 भी 5 से डिविजिबल है। The last digit of the number 4750 is 0. तो लास्ट डिजिट 0 होने के कारण ये 5 से डिविजिबल है। The last digit of the number 991 is 1. That is why 991 is not divisible by 5, क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। इसके वह यूनिट्स प्लेस या फिर लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 नहीं है, इसीलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। Did you know some of the facts about this divisibility rules? A number is said to be divisible by another number if the remainder is 0. अगर रिमाइंडर 0 होता है तभी जाकर हम कहेंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। Divisibility rules are a set of general rules that are often used to determine whether or not a number is evenly divisible by another number. Divisibility rules वही होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे हम यूज करके पता लगा सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल हो पा रहा है या फिर नहीं, वो भी कॉमन डिवीजन ना करके। Every number is divisible by 1. सारे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल है। When a number is divisible by another number, then it is also divisible by each of the factors of that number. अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल हो पा रहा है तो उसके सारे फैक्टर्स के साथ भी डिविजिबल हो पाएगा। इसका ये मतलब कोई एक नंबर ले लीजिए, एक नंबर डिविजिबल बाई 8 होता है, तो क्या होगा, 8 के जो फैक्टर्स हैं 2, 4, 1, 8, ये सभी से वो डिविजिबल हो पाएगा। ठीक उसी तरह एक नंबर ले लीजिए, कोई एक नंबर जो कि डिविजिबल बाई 9 है, तो 9 का फैक्टर क्या है 3, तो 3 से भी वो डिविजिबल हो पाएगा। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो पा रहा है तो वो 2 से और 3 से भी डिविजिबल हो पाएगा। Now do me a favor and the question number 1, is 7826 divisible by 6? क्या 7826 6 से डिविजिबल है? अगर है तो चेक विद डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करके इसको पता लगाइए। Is 4 a factor of 5692? क्या 5692 का फैक्टर 4 है? अगर है तो इसका भी आप एक्चुअल डिवीजन ना करके डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके इसका कैलकुलेशन कीजिए। Which among the following numbers are divisible by 3? इसमें से कितने नंबर जो है, इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है? एक है 560, दूसरा है 3621 और एक है 87540। ये तीनों नंबर में से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है आपको पता लगाना है। Okay दोस्तों, if you like this video, please hit the like button and you can comment your views and suggestions. You can share with your friends and you can follow me at https://tarunkumardas.blogspot.com. You can download most of the worksheets related to your mathematics as well as some quizzes related to almost all the chapters of your mathematics, absolutely free for you. Now, thank you for watching and thank you for being with me. I will be back with a new video for you in the next class. Till then, bye bye.